11 September 21, and it is an online movement of peacekeepers. It is mainly on the online media that we operate, and on the Facebook we have a page on the Facebook, facebook.com World Peacekeeper Movement, and on that page we have 2.1 million peacekeepers right now, and there are 7 peace values which are the foundation of inner peace. So we believe that the world peace is very important. The world peace is very important, and one of the ways the world peace can happen is if more of humanity has inner peace with their own self. And if you practice good human value and you give good human value to the other human being around you, then by the law of karma, you will get something in return. And the greatest blessing in return you will get is that you will get your inner peace of mind and inner peace. So there are 7 human values we have identified. That is gratitude, forgiveness, love, humility, giving, patience, and truth. So each human value stands for one day of the week. So gratitude is Monday, forgiveness Tuesday, love is Wednesday, humility Thursday, giving Friday, patience Saturday, and truth is on Sunday. So on every day we celebrate one human value on all the social media and all that. So today is Monday. So today our peacekeepers, they wish each other happy gratitude day, and we try to spread the importance of gratitude through different messages, videos, and etc. And we are thankful that we want to people who are prominent in society, like the today World Peace Ambassador who have come over here, and they have a prominent role in society. And if they also start spreading the message of peace, then we all in our small way can do that. So we'll have a WhatsApp group. In that we post the message, some of that they can spread. And we also have a peace cafe where we sell peace gifts. We sell peace t-shirt, peace coffee mug, etc. And on the social media platform of the celebrity, the World Peace Ambassador, if they put a peace t-shirt with the QR code, then their their fans will get a 10% discount, and they will also have a revenue sharing. So we want it also in a revenue way also, and we want in a social way also. So when we combine the both, they come together and we work together to achieve this. So we'll start with the this felicitation thing. Without any order of it, I'm just starting any order it is started. So we'll first start with Shweta Bhatt, felicitation ceremony. I'll introduce you first. So Shweta Bhatt is a well-known Sugars, is a celebrated singer, songwriter and producer from Dubai, who is now based in Mumbai. She has successfully released many singles as well as covers in Hindi and Gujarati, and received a mammoth response from fans and followers. She has been honoured by the reputed Gujarati Sign Life Award as Best Singer for a single Gulal Kiya, and was also nominated by 5th Hungama Artist Award. So we have pleasure to welcome you as a host. You have to come here.
पास कुछ होता है तब भी वो दे सकता है। तो मंजरी जी ने जो बात कही उससे इनकी लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उतना क्लियर नजर आता है कि हम जब अपने अंदर शांति पैदा करेंगे तभी हम दूसरे को शांति दे सकेंगे। ये जितनी भी अशांति हम दुनिया में देखते हैं ये इसीलिए है कि वो लोग अंदर से अशांत हैं। अगर वो शांत हो जाएं, अगर हर इंसान गुरु मुकेश जैसा हो जाए तो अशांति का चांस ही नहीं रहेगा दुनिया में। ऐसे शांत लोग आ जाएं। लेकिन मुश्किल ये है कि लोग अपने भीतर शांति की स्थापना नहीं कर पा रहे। उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति दुनिया में सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं। जिस दिन हम संतुष्ट हो जाएं कि हमको जो मिला है वो हमको बहुत सही मात्रा में मिला है, और जिस दिन वो ये सोच ले कि हमको जो मिला है वो जितना हमको मिलना चाहिए था उससे ज़्यादा मिल गया, तो दुनिया बहुत सुंदर बन सकती है। लेकिन कठिनाई वही है कि इंसान हमेशा ये समझता है कि भगवान ने उसको उसका हक दिया ही नहीं, उसको जो मिलना चाहिए था उसने दिया ही नहीं। वो कंप्लेन करता रहता है जिंदगी और भगवान से। तो यदि शांति की स्थापना इस संसार में करनी, तो जैसा मंदिर जी ने कहा, शिवानी ने कहा कि हमें अपने अंदर शांति की स्थापना करनी है। मैं संगीत के माध्यम से करता हूँ, कोई नृत्य के माध्यम से करता है, शिवानी भी संगीत के माध्यम से करती है। तो मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करूँगा कि सबके अंदर संतोष की स्थापना हो, शांति की स्थापना हो। और इस बड़े काम को करने के लिए डॉक्टर बुश जो मुहिम कर रहे हैं, जो एक आइडिया सबको दे रहे हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं डॉक्टर बुश को बहुत शुक्रिया। Today's event, I mean, many people associate with the initiative. How proud do you feel, and what is the aim, vision for the future as such? We have a World Peacekeeper movement. It is on Facebook. Sir, look center. There are 2 million peacekeepers, and we wanted to spread the peace through the 7 human values. And when we are doing it ourselves, we can only achieve so much. But when celebrity, they join hands with us, and they also start promoting it, then we can spread the concept of peace in a more bigger way, and that is why the concept of World Peace Ambassador has started. And what is the promotion strategy, and how many people right now are associated, and what is the purpose basically for the future you want to do? Right now we had one function similar 15 days back, and every 15 days we'll have one function like this. शिवन जी, आप क्या कहना चाहेंगे एसोसिएट होने से, कैसा फील हो रहा है और क्या आपका क्या मकसद है इससे जुड़ के, क्या करना चाहती हैं आप? So I think this is my second year, doctor. So I think I love the whole idea because मुझे लगता है कि अपनी हम बिजी जिंदगी से हटके कुछ वर्ल्ड के लिए करें. It's really important, especially क्योंकि हमारे followers हैं, हमारे fans हैं. So they're always looking up to us for messages and So I think we are the best people to actually spread the message of world peace, love and empathy. And I think music के ज़रिए मुझे लगता है कि हमेशा music is such a powerful tool. With my songs, with my music, with my performances, I'm sure I can really spread the message of peace. And So, I'm very proud to be a world peace ambassador. तो अभी के टाइम में ये कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे आप देख रहे हो कि पुलवामा अटैक हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही है, तो ये टाइम पे कितना इम्पोर्टेंट है इस अवेयरनेस को फैलाना, स्पेशली अभी के टाइम से मुझे तो लगता है कि टेररिज्म बहुत सालों से जो है it has been corrupting our world, corrupting the world peace. तो मुझे 2008 में इस चीज़ का बहुत मेजर एहसास हुआ था जब 26/11 के टेरर अटैक्स मुंबई में हुए थे. I lost a very very dear friend of mine, और
तब मैं आई वाज सो शेकन अप कि मुझे लगा कि वी शुड गेट अप. इट कुड हैव बीन मी, इट कुड हैव बीन समबडी वेरी 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 डियर टू मी. सो आई थिंक तब मैंने गाना बनाया था अलविदा, अलविदा टू टेररिज्म. तो तभी से मुझे लगने लगा कि वी मस्ट रिमाइंड आवर सेल्फ कि ये एक ऐसा डिजीज़ है, टेररिज्म ऐसा डिजीज़ है विच नीड्स टू बी इरेडिकेटेड फ्रॉम द रूट्स. तो हो सकता है कि म्यूज़िक के ज़रिए इट माइट जस्ट म्यूज़िक हैज़ वेरी पावरफुल वाइब्रेशंस. तो उनके वाइब्रेशंस के ज़रिए जो ये टेररिस्ट हैं, क्या पता इनमें कुछ बदलाव आ जाए. सो तभी से मुझे लगता है टेररिज्म, if it is eradicated, the world will be a much beautiful and better place to live in. Guru sir, anything you would like to add about शांति का संदेश, शांति का जो शब्द रखा है, मतलब पूरे विश्व में जो मेन समस्या है वो अशांति है. तो पीस रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए. हर व्यक्ति अगर मन में सोच ले कि वो अपने आप में शांत रहेगा और अच्छा शांति का वाइस भेजेगा एक दूसरों को, तो पूरा विश्व में शांति होगा. मैम, what do you want to say about this movement and क्या अच्छा सॉरी. So what do you want to say about this movement the sir have started, and अभी जैसे मैंने शिबानी मैम को पूछा था, करंटली जो सिनारियो चल रहा है हमारे देश में, कितना इम्पोर्टेंट है पीस हमारे देश के लिए? So TWPM. This is a wonderful movement because through this movement we are able to reach to people. We are able to reach to our being influencers. We can reach to the audience masses and communicate to them. Now, when we say what is hampering the peace, there's a lot of there in our Indian society, especially dowry, child labor. Let's talk about terrorism is definitely there, but there's a lot of other things also around terrorism which we need to correct in our society. So I personally believe that this is a very big major step that has come from Dr. Hoz, and really thank you for being this movement. Thank you so much. इम्पोर्टेंट है. और सर ने जो इनिशिएटिव लिया है कितना इम्पोर्टेंट है अभी के टाइम में, जो जिस तरह का माहौल चल रहा है हमारे देश में? सिर्फ ये हमारे देश की बात नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की बात है. हम इंडिया में रह रहे हैं, इसलिए हमें सिर्फ यही का पता है कि यहाँ पे इतने सारे टेररिस्ट अटैक्स हो रहे हैं, इतने दंगे हो रहे हैं, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. ये सारी जगह पे है. तो इसीलिए हम ये इनिशिएटिव ले रहे हैं कि द वर्ल्ड पीस, हमें पूरे वर्ल्ड तक ये किसी भी तरीके से ये मैसेज पहुँचाना है, और ये बहुत ही ज़रूरी है. आज सर ने ये इनिशिएटिव लिया है. हमें लगता है कि अगर हम छोटे छोटे ग्रुप्स में या छोटे छोटे कोई एक इंडिविजुअल भी अगर खड़ा हो जाए और वो अपने ग्रुप्स में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ये बातें फैलाना शुरू कर दे कि हम अच्छे से रहते हैं, शांति से रहते हैं, या इस बात को फैलाते हैं, तो 1 से 2, 2 से 4 और 4 से सैकड़ों तक ये बात पहुंच सकती है और शांति बरकरार रह सकती है. और ये टेररिस्ट अटैक्स या जितने भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं, ये किसी ग्रुप का या ऑर्गेनाइजेशन का काम नहीं है. ये हम ही लोगों में से जाके वहाँ पे ऐड होते हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, और हम ही लोग ये पीस भी लाने की कोशिश कर रहे हैं. तो हमारा जो माइंडसेट है, अगर किसी तरह हम धीरे धीरे ये आगे तक पहुँचाए, सारी जनता तक पहुँचाए, सारे पॉपुलेशन में पहुँचाए, तो मुझे लगता है कि हमें ये फाइट नहीं करना पड़ेगा इस नेगेटिव चीज़ों के अगेंस्ट में. हम प्यार से, हम अच्छी बातें करके, हम पॉजिटिव थॉट्स लेके अगर हम पहुंचा पाए ये लोगों के बीच, तो बहुत आसानी से पहुंच सकती है बातें. मैम, सेलिब्रिटी का जुड़ना कितना इम्पोर्टेंट है? जैसे सर ने कहा कि सेलिब्रिटी की बात सब लोग सुनते हैं, उनके फॉलोअर्स की वजह से ज़्यादा लोगों तक बात पहुंचती है. तो एनीथिंग वुड लाइक टू? ये बात सही है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे आप सेलिब्रिटी बन जाते हो, आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही है, लेकिन लोग जो आपको देख नहीं पाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यू आर समथिंग डिफरेंट. तो क्या होता है कि वो कुछ दिमाग से सोच नहीं पाते हैं. वो सोचते हैं कि अच्छा ये मुझे पसंद है, ये जो कर रहे हैं वो सही है, वो अच्छा है, तो मैं भी वही करूँ. तो उस तरह से ऐसा होता है कि लोग आपको आंख बंद करके, जैसे कहते हैं कि लव इज़ ब्लाइंड, उसी तरह से सेलिब्रिटीज़ का भी ऐसे होता है कि लोग ये सोचते हैं इट इज़ ब्लाइंड. आप जो भी करेंगे वो उस चीज़ को फॉलो करेंगे, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है. तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप सही करेंगे तो उतना ही ज़्यादा आप लोगों को अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सिखाएंगे, सही रास्ता दिखाएंगे. इसीलिए हम मूवीज़ बनाते हैं. मूवीज़ में हम लोग
लास्ट में एक मैसेज देते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। आपने पहले देखा होगा कि मूवीज़ में ये बताया जाता था कि बच्चे बड़े होते थे तो माँ बाप को घर से निकाल देते थे। अभी वो ट्रेंड चेंज हो गया। अभी आप देखिए कि लेटेस्ट मूवीज़ में जो आता है वो बहुत ही अच्छी चीज़ें दिखाई जाती हैं। रियल लाइफ के ऊपर ट्रू चीज़ों के ऊपर, रियलिटी के ऊपर मूवीज़ बनाई जाती हैं, तो वो मोटिवेट करती है लोगों को। एंड जैसे कि अभी मंजरी ने बोला कि टेररिस्ट जो है, टेररिस्ट हम में से ही निकलता है। शी इज़ राइट, टेररिस्ट हम में से ही निकलता है। मुझे ऐसा लगता है द ओनली प्रॉब्लम इज़ ईगो। अगर आपकी ईगो जो होती है ना, वो ईगो ही आपको लड़ाई करा देती है। जो आप शादी करके जाते हैं, फैमिलीज होती है, ईगो ही से ही आप लड़ते हैं। आप टेररिस्ट बनते हैं, वो सिर्फ एक ईगो है। दैट्स जस्ट अ ईगो कि हमारा ये है, हमारा वो है। आई डोंट बिलीव इन रिलीजन्स। मुझे ऐसा लगता है हम सब इंसान हैं, राइट। एक ही भगवान ने बनाया है हमें, वो आप अल्लाह कह लो, वो आप जीसस कह लो, वो आप कुछ भी कह लो, तो हम सब एक हैं, ठीक है। ईगो अगर हम लाएंगे तो लड़ाई होगी। वो पापा से भी आपकी लड़ाई हो जाएगी। ईगो में लड़ाई होती है और कोई रीज़न नहीं है लड़ाई का। तो यही कहना चाहूँगी कि ईगो आप लोग मत रखिए, प्यार से रहिए। कोई आपको कुछ कह भी देता है तो थोड़ी देर का गुस्सा है, शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहेंगे वर्ल्ड पीस के लिए क्या कहना चाहेंगे, और एक एक्ट किया था आपने IG कामा सूत्रा का IGT में, तो कुछ शेयर करना चाहेंगे उसके बारे में? बट आप कामा सूत्रा के बारे में क्या पूछना चाहते हैं? जो एक्ट किया था आपने लोगों के लिए। See, for me, like even if we are talking about world peace ambassadors, so love is very important. चाहे वो कामसूत्रा के जरिए दिखाया जाए, चाहे वो डांस के जरिए दिखाया जाए, चाहे वो फैशन के जरिए दिखाया जाए। एंड everybody known me as like sensuous couple of India, like as a couple. So लव एक ऐसी चीज़ है जो कहीं ना कहीं इंसान के ऊपर एक शांति का प्रभाव डालता ही डालता है। So like if I have many followers on Instagram, TikTok and so many social sites, like जिसपे आजकल because एक जो डिजिटल मीडिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक माध्यम है लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का। So like अगर हमारे फॉलोअर्स इतने हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बालों को फॉलो करते हैं, हमारे स्टाइल को फॉलो करते हैं, हमारे डांस को फॉलो करते हैं। तो अगर हम उन्हें पीस के मैसेजेस देते हैं तो ऑफकोर्स वो भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे ही। बिकॉज एक टाइम था लाइक लोग मेरे बालों को लेके बहुत क्रिटिसिज्म मुझे झेलना पड़ता था, लुक्स को लेके, लेकिन आज वही मैं देखता हूँ तो हर इंसान वही, हर लड़का वो चीज़ फॉलो कर रहा है। इसका वो कहीं ना कहीं वो चीज़ सही थी। तो अगर मैंने कामसूत्रा भी किया है तो उसे भी एक लव और एक अच्छे तरीके से पेश किया है, और वो हमारे इंडिया का कल्चर ही तो था। अगर हम सालसा कर सकते हैं, बचाता कर सकते हैं, बाहर की जितनी भी डांस फॉर्म्स है उन्हें शोकेस कर सकते हैं, लैटिन डांस फॉर्म्स को हम बहुत अच्छे से प्रेजेंट करते हैं कि ये सालसा है, ये सब कुछ है, तो जब हमारे इंडिया में कामसूत्रा कल्चर है तो वो क्यों नहीं कभी किसी को दिखाने की कोशिश की। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।